Hello everyone, this is Purva from St. Xavier's College. This is our fifth video on preparation for entrance. ये वीडियो है उन बच्चों के लिए जो 12 के बाद सेंट जेवियर्स कॉलेज से जूलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं। इस वीडियो में हमारे जूलॉजी डिपार्टमेंट के कुछ स्टूडेंट्स ने बताया है कि आपको एंट्रेंस की तैयारी कैसे करनी है, क्या क्या कवर करना है, उन्होंने कैसे तैयारी की थी एंड मैनी मोर। तो आइए देखते हैं। Hello, my name is Kirti Chauhan. I am a student of St. Xavier's College, Ranchi, pursuing Zoology Honours batch 2018 to 2021. So in this video, I'll be talking about two things. First, the preparation of entrance and everything related to it. And the second thing is an aspect which I think you should consider if you are appearing for this exam. So firstly, for the entrance, you'll have to fill up a form on the website of St. Xavier's College, Ranchi. And after that, you will have to sit for an offline exam, and for that the center will be St. Xavier's College, Ranchi itself. And the question paper will consist of only MCQs. For every right answer you'll get 1 marks, for every wrong answer 0.25 marks will be deducted. I can also say this, that for every 4 wrong answer that you give, 1 marks will be deducted. The question paper there is something about the question paper that they do not allow you to keep the question paper with yourself, so you'll have to submit it along with the answer sheet. So I think the pattern of the number of questions, it always changes, because when I appeared, I guess I gave 100 questions were given in my question paper, but my juniors, they had I guess 180 questions. So this is something which changes, but you don't have to worry about that because the syllabus is very precise. You just have to take out the NCERT of 11th and 12th biology and study only the zoology portion from it, and that's it. If you do that, you are surely gonna get your admission in St. Xavier's College. But if you ask me if the questions are tough or not, the number of seats for zoology department is very less, because other departments, they have 2 batches, the morning batch and evening batch, but zoology department, we have only approximately 70 seats, we have only 1 batch, so the seat is very less. That is why the competition becomes very high. But if you prepare well, you just have to study the NCERT book, only the zoology portion, and if you prepare well, you will definitely get selected. Now moving on to one aspect which I said I wanted to talk about. If you're appearing for this exam, I somewhere know that you definitely took a drop of a year, or maybe you're somebody who's not able to take any more drops, and that is why you think that let me get myself enrolled into a college and also prepare for NEET simultaneously. But if you're looking forward to do that in St. Xavier's, let me tell you, I'm very sorry to say this, but this is not going to happen in St. Xavier's because the schedule is so hectic. When I was in first year, if we have EVS or English classes from 7:30 in the morning to 4 p.m. in the evening, we were in the college. You'll have to do your theory classes, your practicals, and since I took 2 GEs, chemistry and botany, that is why there were days in a week when I do not had a single leisure period. So the schedule is very hectic, and it's very tough to do preparation of NEET and also the classes both together. And if you think maybe I'll skip the classes, that is not possible. You have to have 75% of attendance. That is a compulsion. Without it, you will not be able to sit in the exams. So, but maybe you can prove me wrong. Maybe you're somebody who's very genius and who can do both the things together. So maybe you can prove me wrong, but this is something which I thought is my duty. I should warn you about it. And I'm able to say this because all of my senior, juniors, my classmates, all of us have at least taken a drop of 1 year. So I know that maybe this is something you're right now in conflict with. So if you are looking to prepare for NEET, then I think you should take a drop of 1 year, because I think ultimately your success matter. 1 year early or 1 year late will not matter at all. But if you're really looking to study zoology, let me tell you, we have one of the finest professors who will help you in the class, outside the class. They'll clear your doubts always. And our seniors have done really good in the PG entrances. So when it comes to the study part, then zoology department is really good. And for not for the learning experience, I guess St. Xavier College is something where you do have a lot of different kind of experiences too. I'm talking about the extracurricular thing, and yeah, that's just it. And
Give this video a thumbs up if you like it and do subscribe to Purva's channel. She's a dope girl. फ्रेंड्स, मैं हूं वंशिका लोहिया। मैं सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज के बीएससी जूलॉजी डिपार्टमेंट से हूं। 2018-21 बैच। जूलॉजी एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए सबसे ज़रूरी बात ये है कि आपका 11-12 में पीसीबी कॉम्बिनेशन होना चाहिए, यानी फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। और इस फील्ड में आने के बाद मैं सबसे पहले ये कहूँगी कि आपको अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा कि मैक्सिमम लोग यही सोचते हैं कि जूलॉजी या फिर बायोलॉजी एक रटने का सब्जेक्ट है, इससे बस मगअप करके हम लिख देंगे एग्ज़ाम में तो हमारा काम हो जाएगा। लेकिन चूँकि आप अब बीएससी के फील्ड में आ रहे हैं, अब 10 या 11-12 में आप नहीं पढ़ रहे हैं, तो इसलिए रटने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। आपको अपना ये माइंडसेट चेंज करना होगा और रटने के बदले समझने की तरफ आना होगा। आपको एक क्यूरियस माइंडसेट डेवलप करना होगा। क्वेश्चंस अपने माइंड में जनरेट करने होंगे कि अगर ऐसा है तो क्यों है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है, इस प्रोसेस के पीछे का इसका फंक्शन क्या है, इससे इसका रिज़ल्ट क्या होगा, इसका फ़ायदा क्या है, सब आपको जानना होगा। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा। और बायोलॉजी में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो उसमें जितने भी सेल है या ऑर्गन है या कोई भी हार्मोन है, तो वो बिना कारण के नहीं है। हर एक सेल का भी स्पेसिफिक फंक्शन होता है, उसके प्रेजेंट होने का एक स्पेसिफिक कारण होता है। हर एक ऑर्गन का बॉडी में प्रेजेंट होने का एक स्पेसिफिक कारण होता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी चीज़ है तो वो बस ऐसे ही है। तो इसलिए हमें उस कारण को जानने के पीछे अपना उसको जानने के में अपना एफर्ट लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा नॉलेज बहुत बढ़ेगा। क्योंकि मेन इसमें बायो पढ़ने का उद्देश्य है कि आपको एक क्यूरियस माइंडसेट डेवलप करवाता है बायो, क्योंकि उसमें इतने सारे फैक्ट्स होते हैं, इतना सारा कुछ दिया होता है कि आपके माइंड में खुद ब खुद ये क्वेश्चन आएगा कि ये ऐसा है तो क्यों है, इसके पीछे का कारण क्या है। और वो होना सबसे ज़रूरी बात है। ज़ेवियर्स कॉलेज में जूलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट है। लाइक स्टूडेंट्स जागरूक है, या यूँ कह सकते कि जानने की इच्छा रखते हैं। तो अगर आप सिर्फ रटने की तरफ जाएंगे तो आपको खुद में एक कमी महसूस होगी कि आप मानो दूसरों से पीछे हैं, क्योंकि उन्हें जो पता है वो समझ कर आए हैं, आपको जो पता है वो आप रट कर आए हैं। तो दोनों में काफ़ी फ़र्क हो जाता है। तो उसके कारण एक गैप सा क्रिएट हो जाएगा, आप खुद को पीछे महसूस करेंगे। इसलिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी रटने की आदत बिल्कुल छोड़ दें और समझने की तरफ आ जाए। दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे जो ज़ेवियर कॉलेज के प्रोफेसर्स हैं वो काफ़ी सपोर्टिंग है। जैसे वो सिलेबस ओरिएंटेड नहीं है कि वो बस जल्दी जल्दी उन्हें सिलेबस अपना कंप्लीट कराना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और आप इस चीज़ का फुल यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और वो किस तरह कि आप जितना ज़्यादा डाउट्स पूछेंगे प्रोफेसर से, उतना ज़्यादा आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। क्योंकि डाउट्स जो आप पूछते हैं तो उसमें सर सिर्फ स्पेसिफिक आंसर उसका नहीं बता देते हैं, उसके आगे का पीछे का जितना भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होता है सब आपको पता चलता है। लेकिन उसके लिए आपको ये एफर्ट लगाना होगा कि आप अपना डाउट्स लेकर आए। आप अगर उस फील्ड के बारे में पढ़ेंगे, उस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे, तभी आप डाउट्स लेकर आ पाएंगे। अगर आपने पहले से उस टॉपिक के बारे में पढ़ा हो, या जो पढ़ाई होने वाली है कॉलेज में, क्लास में, नेक्स्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट होने वाला है, मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप उस टॉपिक के बारे में एक बार पहले से थोड़ा सा रिविज़न करके ज़रूर आए, थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ के ज़रूर आए। उससे ये फ़ायदा होता है कि एक तो जो सर आपको पढ़ा रहे हैं वो आपको जल्दी समझ में आता है, आप उस चीज़ को जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ा हुआ होता है तो जो टर्म्स आते हैं आप उससे जल्दी से समझ पाते हैं कि अच्छा ये पढ़ा था मैंने तो इसका यहाँ पर ये मतलब निकल रहा है। और दूसरा, आपको ये समझ में आता है कि जो आपने पढ़ा था क्या वो आपने सही समझा था,
और जितना पढ़ा था क्या वो उतना काफ़ी था या और भी उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। और एक और बात ये कि जो प्रोफेसर्स पढ़ाते हैं तो वो आपको बेस से पढ़ाएंगे, लाइक 11-12 का भी वो आपको पढ़ाएंगे अगर आपका बेस क्लियर नहीं है तो। लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप सिर्फ कॉलेज या प्रोफेसर्स पे पूरे डिपेंड ना हो जाए कि लाइक कॉलेज में आने से पहले, एडमिशन हो जाने के बाद, क्लासेस स्टार्ट होने के पहले मेरा ये एडवाइस रहेगा कि एक बार जो 11-12 का NCERT है बायोलॉजी का, वो आप उसे एक बार पूरा पढ़ें, पूरा अच्छे से समझें, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। तो उसके बाद आप जो क्लासेस करेंगे और जो अगर आपका बेस स्ट्रॉन्ग हो गया है, अगर आपने उस तरह का प्रेपरेशन किया है खुद के लिए, तो उसके बाद आप जो क्लास में पढ़ेंगे और आपका जो ग्रास्प करने का कैपेसिटी होगा, आपका जो एफिशिएंसी होगा, आपको जितना जल्दी समझ में आएगा, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। क्योंकि देखिए 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, एक जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ रट लेते हैं और एक है कि जिन्हें सब कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई भी पॉइंट है जहाँ उन्हें समझ में नहीं आ रहा है तो वो उस चीज़ को क्लियर करते हैं। तो समझ वही लोग सकते हैं जिनका बेस क्लियर हो। बेस ही क्लियर नहीं होगा तो आप आगे की पढ़ाई कैसे पढ़ेंगे, आपको आगे का कैसे समझ में आएगा? क्योंकि आगे का तो जो हमने पहले पढ़ लिया है उसी का एक्सटेंशन है, उसी का और इन डेप्थ में हमें पढ़ाया जाता है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपका बेस क्लियर हो। आपको अगर नहीं समझ में आया है पहले का तो बहुत सारा तरीका है कि आप उसे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सके। आप अपने दोस्तों से समझ सकते हैं, यूट्यूब में इतने सारे वीडियोस अवेलेबल है, चैप्टर वाइज है, टॉपिक वाइज भी अब तो वीडियोस अवेलेबल है, हर एक टॉपिक पे एक वीडियो आपको मिल जाएगा। तो उस पर आप थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करें और थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड करें, अपनी नॉलेज को थोड़ा सा अपग्रेड करें, ब्रशन अप करें अपना जो नॉलेज है। क्योंकि क्या होता है कि बोर्ड एग्ज़ाम के बाद थोड़ा हम जैसे बुक कॉपीज़ रख देते हैं उठाकर, अभी लगता है कि अभी तो बोर्ड्स दिया ही है तो ठीक है, कुछ दिन बाद जब कॉलेज स्टार्ट होगा तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। लेकिन जूलॉजी में क्लासेस स्टार्ट होने के पहले ये चीज़ प्लीज़ अब ज़रूर कीजिएगा कि आप अपना एक बार थोड़ा सा रिफ़्रेश कर ले नॉलेज को, या फिर मेमोरी को मैं कहूँगी रिफ़्रेश कर ले और सारी चीज़ें वापस एक बार पढ़ ले और उसे समझ ले, ताकि आपको अपकमिंग क्लासेस में, अपकमिंग ईयर्स में बहुत मदद मिलेगी। और एक जैसे होता है कि अगर आप सिर्फ रट रहे हैं तो एक होता है ना कि कहीं ना कहीं आप पीछे रह जाएंगे बाकी क्लासमेट्स से, और हर चीज़ में, इनफैक्ट प्रैक्टिकल्स में भी वही लोग जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं, जल्दी समझ पाते हैं, जल्दी से एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाते हैं जिनको पता हो, जिनको समझ में आ गया हो कि करना क्या है, कि इस एक्सपेरिमेंट का पर्पस क्या है। और जिनको नहीं समझ में आता है उनका वही है कि वो दूसरों से पूछ कर रहे हैं कि इसके बाद क्या करना है। तो हर चीज़ में आपको हेल्प मिलता है और हर चीज़ में वो आपको हेल्प करेगा, क्योंकि सिर्फ मार्क्स ही सब कुछ नहीं होता है। कॉलेज में मार्क्स लाना बहुत आसान है, आप बस रट कर जाएंगे, आप लिख देंगे सब, तो मार्क्स तो आपको मिलेगा ही। लेकिन एक खुद का नॉलेज जो डेवलप करना होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो प्लीज़ अपना माइंडसेट उस हिसाब से कीजिए कि आप उसी चीज़ पर फोकस कर रहे हो, कि सीखने का आपको शौक़ जगाना होगा खुद में, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। हमारा जो फाइनल टॉपिक है कि एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे एंट्रेंस एग्ज़ाम हम सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज का क्लियर कर सकते हैं। तो इसका सबसे सिंपल तरीका है, मतलब तरीका तो सिंपल है, प्रेपरेशन आपको करना है कि 11-12 का NCERT जैसा कि मैंने बताया आपको अच्छे से पता होना चाहिए, आपका पढ़ा हुआ होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए इनफैक्ट। क्योंकि एक मेजर बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर होता है वो इस तरह से सेट किया जाता है कि वो ये देखते हैं स्टूडेंट्स का कि उनको कितना समझ में आया है, वो कितना समझ कर आए हैं और कितना रट कर आए हैं। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन सिंपल सर्व नहीं कर दिया जाता है कि हाँ इसका तो आंसर पता ही है।
क्वेश्चंस ट्विस्टेड फॉर्म में रहता है, उसमें थोड़ा सा दिमाग लगाने की भी ज़रूरत है और थोड़ा सा अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है आपसे। तो वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जैसा कि 11-12 का एनसीईआरटी की तो बात हो गई, लेकिन अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या आपने किया था, तो अगर आपने किया था तब आपका जो बेस होता है बायो का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाता है उसमें। आप क्योंकि आप इतना सारा उसमें मॉड्यूल्स पढ़ना होता है, इतना सारा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पढ़ना होता है, तो बेस अपने आप स्ट्रॉन्ग हो जाता है। लेकिन इन केस आप नीट के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे थे और 11-12 के बाद आप डायरेक्ट बीएससी के लिए आए हैं, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। आप ऐसा कर सकते हैं कि 11-12 के एनसीईआरटी के अलावा थोड़ा सा अपना और कहीं से इन्फॉर्मेशन बेटर रहेगा कि आप नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को ही देख लें, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं, लेवल क्या होता है क्वेश्चंस का। क्योंकि सिर्फ 11-12 एनसीईआरटी बहुत बेसिक हो गया, उसके अलावा भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन है जो जिन्होंने नीट के लिए प्रिपेयर किया है उन्हें पता ही है कि एक कोई भी कोचिंग का मॉड्यूल और एक 11-12 एनसीईआरटी में कितना फ़र्क होता है। तो ठीक है, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपको नीट लेवल का प्रिपरेशन करना होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम निकालने के लिए, लेकिन हाँ आपको थोड़ा और ज़रूरी है पढ़ना एनसीईआरटी से थोड़ा ज़्यादा। तो इसके लिए आप क्रोम में गूगल में काफ़ी सारे साइट्स हैं, बायोलॉजी के शॉर्ट नोट्स या समरी, चैप्टर वाइज समरी है। यूट्यूब में काफ़ी सारे चैनल्स हैं जिसमें आप अपना इंफॉर्मेशन अपग्रेड कर सकते हैं। और एंट्रेंस के लिए भी किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप देख सकते हैं, क्योंकि जूलॉजी एंट्रेंस में सिर्फ बायो के क्वेश्चंस आएंगे और वो ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं। तो मेरे ख्याल से काफ़ी आसान है ये, अगर आप अच्छे से एक बार प्रिपरेशन कर ले, बस सिर्फ बायो ही पढ़ना है क्योंकि आपको, तो वो तो काफ़ी कम टाइम में हो जाना चाहिए। 11-12 एनसीईआरटी और थोड़ा सा और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, उससे आपका आराम से एंट्रेंस निकल जाएगा। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होता है, जूलॉजी स्टूडेंट्स के लिए कोई इंटरव्यू नहीं है। तो ये भी एक आपके लिए बेनिफिशियली बात है कि अगर आपका एंट्रेंस निकल गया और आपके बोर्ड्स में परसेंटेज अच्छे हैं तो आप मान के चलिए कि आपका एंट्रेंस क्लियर हो ही जाएगा, आपको एडमिशन मिल जाएगा। और जूलॉजी में आने के बाद एक मैं एडवाइस देना चाहूँगी कि जो जेनरिक सब्जेक्ट्स हमें लेना होता है, तो जूलॉजी स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री और बॉटनी ऑप्शन में मिलता है। तो अगर आपको आगे एमएससी परस्यू करना है तब तो आप केमिस्ट्री ज़रूर ले एज योर जेनरिक सब्जेक्ट, क्योंकि मैक्सिमम एमएससी के जो कॉलेजेस हैं वो ऐसा चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स का जेनरिक सब्जेक्ट केमिस्ट्री हो तो उन स्टूडेंट्स को ज़्यादा प्रेफरेंस मिलता है। बहुत सारे कॉलेजेस में तो नेसेसरी है कि आपका केमिस्ट्री होना ही चाहिए एज जेनरिक सब्जेक्ट इन योर ग्रेजुएशन। तो इसलिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि बाद में थोड़ा डिफ़िकल्टी फेस करने से अच्छा है कि आपको पहले ही पता हो और आप ले सही सब्जेक्ट। और अगर आपको एमएससी नहीं करना है, आपको कोई और कंपटीशन के प्रिपरेशन करना है आफ्टर ग्रेजुएशन, तब आपको, और अगर आपको बॉटनी में इंटरेस्ट है तो आप बॉटनी के लिए जा सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन जिनको एमएससी करना है उनके लिए स्पेशली मैं ये सजेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ केमिस्ट्री ही लीजिएगा अपने ग्रेजुएशन प्रोग्राम में, अपार्ट फ्रॉम जूलॉजी एज योर जेनरिक सब्जेक्ट। एंड जिनको नहीं करना है एमएससी, वो उनका चॉइस पे डिपेंड है, वो बॉटनी भी ले सकते हैं, केमिस्ट्री भी ले सकते हैं। Hello friends, myself Shweta Kumari. I'm from St. Xavier College, Ranchi, Zoology Department, batch 2019-2022. As you all know, St. Xavier College is one of the prestigious college in India. Thousands of students का dream होता है कि वो Xavier College में admission लें, and of course, I was one of them. तो चलिए हम सीधा मेन टॉपिक पे आते हैं कि मैंने एंट्रेंस की प्रिपरेशन कैसे की, अब मैंने अपने एंट्रेंस को कैसे क्लियर किया। मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको हेल्प करेगा एंट्रेंस को क्लियर करने में। लेट्स गो। पॉइंट 1 से पहले मैं आप लोग को ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि फिज में जूलॉजी ऑनर्स के लिए सिर्फ 75 सीट्स हैं। पॉइंट 2, बहुत से स्टूडेंट का ये डाउट होता है कि क्या उनके 12th के मार्क्स इस एंट्रेंस में कोई रोल प्ले करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बताना चाहूंगी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके 12th के मार्क्स इस एंट्रेंस में कोई भी रोल प्ले नहीं करते हैं, तो आपको टेंशन नहीं, कोई बात नहीं। आप अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए एंट्रेंस का, उसे क्लियर कीजिए, आपको एडमिशन जरूर मिलेगा। पॉइंट 3, आपको एंट्रेंस क्लियर करने के बाद
कोई फर्दर एग्जाम नहीं देना होता है। I mean, आपको फिर उसके बाद कोई इंटरव्यू नहीं देना होता है, बिकॉज जेवियस में बहुत से डिपार्टमेंट में है कि आपको एंट्रेंस क्लियर करने के बाद आपको इंटरव्यू भी देना होता है, बट जूलॉजी केस में ऐसा बिल्कुल। पॉइंट 4, हम लोग चलिए अब थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करते हैं। तो इस एंट्रेंस एग्जाम में आपको 180 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1 मार्क ईच, एंड along with that you will also have 0.25 नेगेटिव मार्किंग, और ये सारे क्वेश्चन आपको एमसीक्यू के फॉर्म में पूछे जाएंगे। पॉइंट 5, एंड आई थिंक दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि हमें जूलॉजी ऑनर्स के एंट्रेंस एग्जाम में क्या पूछा जाता है, क्या सिलेबस है और हमें पढ़ना कहाँ से है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके एंट्रेंस में सिर्फ आपको बायो पूछी जाती है, नो फिजिक्स नो केमिस्ट्री, तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री की टेंशन नहीं, कोई जरूरत नहीं है। और रही बात हमें पढ़ना कहाँ से है, तो आपको 11th और 12th की बायो एनसीईआरटी एकदम थॉरली पढ़ना है, सबसे इम्पोर्टेंट है वो। रही बात किस पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो एज आपको पता ही है फ्रेंड्स, हम लोग जूलॉजी ऑनर्स के लिए एग्जाम दे रहे हैं, देन इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपको जूलॉजी पोर्शन से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप बॉटनी सेक्शन एकदम कंप्लीटली छोड़ देंगे, आप उतनी डीपली नहीं पढ़ेंगे तो भी चलेगा, पर आपको मेन पॉइंट सब अच्छे से पढ़ना है। जूलॉजी पोर्शन में आपको इकोलॉजी का सेक्शन एकदम अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, बिकॉज वो बहुत स्कोरिंग होता है और उससे क्वेश्चन थोड़े इजी पूछे जाते हैं, तो आप ये मौका बिल्कुल ना छोड़ें और सारे क्वेश्चन सही अटेम्प्ट करने का ट्राई करें। देन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लाइक ब्लड सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, डीएनए, यही सब टॉपिक आपको सारे स्टेप्स लर्न होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपका ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में कैसे होता है, उसका सारा स्टेप आपको अच्छे से लर्न होना चाहिए, बिकॉज ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। देन दैट्स इट। एट लास्ट मैं आप लोग को यही बोलना चाहूंगी फ्रेंड्स, बी कॉन्फिडेंट, आप नर्वस मत होइए। अगर आपने एनसीईआरटी का बुक अच्छे से पढ़ चुके हैं और अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो आपको एंट्रेंस क्लियर करने से कोई नहीं रोक सकता है। सो ऑल द बेस्ट, गो फॉर इट। थैंक यू। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। स्टिल कोई दिक्कत, कोई समस्या, कुछ डाउट, एनी क्वेरीज, you can ask us in our comment box. Thank you so much and all the very best.